Hello everyone. Today we are going to discuss about the structure of ovule. Structure of ovule is a very important part when it comes to the 12th board preparation. So pay attention here very carefully. We are going to discuss about the structure of ovule. Now we already have seen the structure of gynoecium, right? So structure of gynoecium में क्या क्या होता है? It has, these are the stigmas. We already have seen this. It's a style. And here it's a ovary. Now we already have seen the functional, or you can say the members of gynoecium are called as carpels or pistils. So basically this is the stigma. Stigma is meant for the reception of pollen grain, the receiving point of the pollen grain. Now from here to here you can see this structure. This is called as a style. Style gives the passage for growth of the pollen tube. And here we have to talk about this today. This is the part we are going to discuss today. So this is the ovary, right? Now ovary has number of ovules and the structure of ovule that we are going to discuss today. So this is the ovary and we already have seen this is the you can say this is the placenta, and placenta has, this is the ovule. This is the structure of ovule like this inside the ovary. So we have to understand the structure of ovule today. So this is the ovule. Like if we want to draw, this is a magnifying view like this. So अगर हम इसका magnifying view भी draw करेंगे तो it has to attach with the placenta. Placentation में हमने पढ़ा है arrangement of ovules and ovary, ठीक है? So this is called as placentation. This is the placenta and here this is the, you can say, the connecting point between ovary and ovule, ठीक है? Ovule को पकड़ के रखेगा ना ovary. So this is like this. Now from here onwards it is like this. So this is the structure we are going to discuss today. ये इंटीग्यूमेंट्स होंगे and इसके अंदर जो होगा, this is actually the functional female gametophyte. So this is the structure we have to discuss. Now what are these structure and what is this and what is the function of this one? So these are the things that we will discuss today in detail. You can see the structure of ovule and this is the inverted type of ovule. Inverted means this is called as anatropous ovule. So all of you remember this is the type of ovule which is the anatropous ovule. Anatropous ovule means, now see, you have to look for the micropyle and chalaza. Now see, micropyle, this is the micropylar end and this is the chalazal end. Now whenever there is a diagram of ovule, you have to find out these two things, micropyle and chalaza. On the basis of these their location, the ovule has been divided into total 5 to 6 types. We will discuss after this session the types of ovule. But here you have to understand this is the most common seen in angiospermic plant and this is the type of ovule which is the anatropous ovule. Anatropous, it means it's a upside down. So ये थोड़ा सा inverted होता है, उल्टा होता है. इसको आप बोल सकते हो this is the inverted ovule, मतलब उल्टा होता है. Now we'll have to find out what is the meaning of inverted ovule. Inverted ovule मतलब micropyle has to be lower side. Micropyle नीचे होना चाहिए, chalaza उसके opposite होना चाहिए. तो ये ऐसा याद रखिए. और you can also remember this way, chalaza and micropyle they are at the, वो एक ही लाइन में प्रेजेंट है, ठीक है? मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन दी सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, बट चैलेजा ऊपर वाले एंड में है और माइक्रोपाइल नीचे के लोअर एंड में है. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. As we all know, this is the category of plant which has the advanced one in terms of plant kingdom. So आपको यहाँ याद रखना है, this is the anatropous ovule, inverted मतलब micropylar end नीचे होगा. So हमें यहाँ अब तक हमने दो चीजें पढ़ी है, micropyle नीचे होगा, chalaza ऊपर होगा. Now we'll talk about the another small segments from this. Okay, so now see, this is the micropyle, this is the chalaza. Now forget about these things, इसको थोड़ी देर साइड में रखिए. बट अभी हम पढ़ेंगे, ये होते हैं इंटीग्यूमेंट्स. इंटीग्यूमेंट्स मतलब इसको भी कोट, नेचर हैज गिवन इट अ कोट, राइट? So coat होगा which is the outer and inner, one which is located at the outside called outer, one which is located towards the inside called inner.
सो आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स विल सी इट्स फंक्शन, बट अगर ये बाहर है प्रोटेक्टिव नेचर में होना चाहिए, इसने प्रोटेक्शन करना चाहिए. आफ्टर दैट यू कैन सी दीज आर द इंटीग्यूमेंट्स, राइट. बट हमने जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, व्हेन वी हैव डिस्कस दिस स्ट्रक्चर, सो हमने यहाँ बोला था प्लासेंटा के साथ ऐसा स्ट्रक्चर रहना चाहिए, है ना. ये हमने अभी पढ़ा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. ये फ्यूनिकल है. फ्यूनिकल मतलब दिस इज द कनेक्शन बिटवीन, यू कैन से ओवरी वॉल एंड ओव्यूल. ये दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक. इसको स्टॉक भी बोला जाता है, इसको स्टॉक भी बोला जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली द कनेक्टिंग पॉइंट. ये कनेक्टिंग पॉइंट है. यहाँ प्लासेंटा रहेगा और इस प्लासेंटा के साथ ये फ्यूनिकल जो है, फ्यूनिकल ये अटैचमेंट शो करेगा ओव्यूल एंड ओवरी वॉल के बीच में. नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज कॉल्ड एज रेफ. दिस इज कॉल्ड एज रेफ. यहाँ रेबल नहीं किया है मैंने, लेकिन दिस इज कॉल्ड एज रेफ. विल सी दैट दिस इज ऑल्सो गिव्स द अटैचमेंट टू ओवरी वॉल एंड ओव्यूल. नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमने अटैचमेंट वाला पॉइंट देख लिया, फ्यूनिकल, चैलेजा देख लिया, माइक्रोपाइल देख लिया, इंटीग्यूमेंट्स भी हो गए. These parts we have already discussed now. So हम अभी पढ़ेंगे न्यूसेलस. अगर हम अंदर की बात करें तो दिस इज द ब्लू वन, जिसमें मैंने बहुत सारी सेल्स ड्रॉ कर, स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज न्यूसेलस. ये न्यूसेलस है जिसमें सारी न्यूट्रिटिव सेल्स रहेगी. इट हैज ऑल सेल्स which would be nutritive in nature. वो किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी? डेवलपमेंट एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगी नरिशमेंट. डेवलपिंग एम्ब्रियो मतलब लुक एट दिस स्ट्रक्चर. दिस इज द एम्ब्रियो और दिस इज द एक्चुअल फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड इनसाइड द न्यूसेलस. दिस इज द एम्ब्रियो सैक. ये एम्ब्रियो सैक है. एंड दीज आर ऑल diploid cells रहेंगी because they have to produce or they have to provide the nourishment to the developing embryo. So ये सारी cells embryo को nourishment provide करेगी. So सारी cells इसकी 2n होगी. यहाँ मैं लिख के दे रही हूँ, that can be a question in the examination. ये 2n जो है ये nourishment का काम करेगा. So nucellus, उसके बाद अंदर का embryo sac है. This is the inner embryo sac. I am drawing here the separate embryo sac so that you can able to understand. Now as you can see here, this is the magnifying view of this. ये मैं एम्ब्रियो सैक आपके लिए सेपरेट ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज इसमें काफी कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं. Now here you can see these 3 cells, right? So ये तीनों में से जो मिडिल वाला है उसको हम बोलेंगे एक सेल, राइट? एक सेल होगा. और ये साइड वाली जो सेल्स है इनको हम बोलेंगे सिनर्जिड्स. क्या बोलेंगे इनको? सिनर्जिड्स. So out of these 3, only one is a egg cell and these 2 are the synergids. और synergids are surrounded to the egg. egg cell के आसपास ये होते हैं. It also has this hair-like structure which is called as filiform apparatus. इसको हम बोलेंगे filiform apparatus. इसका काफी important role होता है when it comes to the double fertilization. We'll see it when we'll discuss the fertilization. Then ये 3 हो गए. कितने सेल्स है? 1 2 3. ओके. नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर 2 मोर सेल्स. यहाँ वापस 2 सेल्स होती है. यहाँ मैंने लिखा है, देखो ये बीच वाला एक सेल है और ये 2 सिनर्जिड्स है, एग एंड सिनर्जिड. दे कलेक्टिवली कॉल्ड एज एग apparatus. सो इनको हम बोल सकते हैं, ये जो असेंबली हमने ड्रॉ किया है दिस इज कॉल्ड एज एग apparatus. एग का apparatus है जिसमें से ओनली 1 इज अ एग सेल. उसके बाद ये 2 है. These are the 2 secondary nucleus. ये secondary nucleus है तो हम इसको बोलेंगे, ये कौन सी सेल हो गई? 3 4 and 5 secondary nucleus है. Now after that we have to understand, यहाँ मैंने वहां भी लेबल किया है antipodals, but how many antipodals? 3. So यहाँ 3 antipodals है. 3 antipodals. So कितने हो गए? कितने हो गए यहाँ? 5 6 7 8. ये पढ़ा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैग्नीफाइंग व्यू में, राइट? नाउ यहाँ आपको अंडरस्टैंड करना है, ये 8 की 8 सेल्स ये एम्ब्रियो सैक में है. इसका मतलब ये है दे ऑल शुड बी इन द हैप्लॉइडी. ये सारी अगर ये एन होगा बिकॉज गैमेट्स ऑलवेज हैव टू बी इन द हैप्लॉइड कंडीशन. सो ये एन होगा, सो दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर एज अ एन एन एन. ये सारी सेल्स एन रहेगी, हैप्लॉइड. सो टोटल एम्ब्रियो सैक वुड बी हैप्लॉइड. हैप्लॉइड सारी सेल्स होनी चाहिए. सो ये जो 8 सेल्स है हमारे पास,
इनको बोला जाता है हैप्लॉइडिक। बट जनरली इन दोनों को एक ही सेल कंसिडर किया जाता है। तो अगर मैंने यहाँ उसको न्यूक्लियस हमारे पास 8 है, देयर आर 8 न्यूक्लियस, राइट, हमने 8 न्यूक्लियस लिखा बिकॉज 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट इंडिविजुअल न्यूक्लियस के साथ सेल्स प्रेजेंट है। लेकिन क्या होता है, इसको एक ही सेल काउंट करते हैं ऐसा, तो ये हमारा 4 4 5 6 7 हो जाएगा। तो हम इस ओव्यूल को क्या बोलते हैं, इट्स अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस हमारे पास 8 है लेकिन हमने सेल 7 काउंट करी है। सो दिस इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, right? So this is how the embryo sac is situated in the nucellus. Now nucellus embryo sac को तो नरिशमेंट मिलेगा nucellus के हेल्प से, बट nucellus को गार्ड किया है इंटीग्यूमेंट्स में, आउटर एंड इनर। और इंटीग्यूमेंट का कनेक्शन ओवरी वॉल के साथ किसने होल्ड करके रखा है, फ्यूनिकल और स्टॉक। रैफे, दिस इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द फ्यूनिकल। ये जो होता है रैफे, दिस इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फ्यूनिकल, ये एक्सटेंडेड पार्ट होगा फ्यूनिकल का। सो दिस इज हाउ इट इज। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। डायग्राम काफी बार पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में, आप इसको ड्रॉ करके रखिए। लेकिन याद रखिए दिस इज द एनाट्रोपस ओव्यूल और दिस इज कॉमनली सीन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और हम लोग पहले ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सो इसमें हम एंजियोस्पर्मिक के बारे में बात करेंगे। सो समझ में आया, ये स्टॉक है जो कि पकड़ के रखेगा उसको ओवरी के साथ। फिर उसके बाद दीज आर द 2 इंटीग्यूमेंट्स, दिस इज द न्यूसेलस विच इज न्यूट्रिटिव इन नेचर एंड ये एम्ब्रियो सैक है। अभी हम क्या करेंगे, ये हमने स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। नाउ विल सी द फंक्शन ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ द ओव्यूल। ओके, नाउ हियर विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ different segments in the ovule in detail. Okay, so we'll start with the nucellus. Nucellus because it's an important part of the ovule because it has a mini diploid parenchymatous cell and we already have seen in the tissues parenchyma मतलब मैंने आपको बताया है parenchyma का function हमेशा storage of food होना चाहिए and most of the time उसका main function storage of food होता है and yes it's a main central bulk part from the ovule के body का बीच वाला main area इसने occupy किया है and at the same time it has a number of diploid parenchymatous tissues or cells so that diploid है मतलब इसका main function है nourishment। तो आपको हमेशा याद रखना है ये nourishment provide करेगा, but किसको provide करेगा, developing embryo को। so ये developing embryo को nourishment provide करेगा, right? fine, ये clear है आपको। next, now funicle it's a support, it provides a support, protection and conduction। जो कि यहाँ है फ्यूनिकल, मतलब अगर मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल होना चाहिए लाइक दिस। सो दिस इज द फ्यूनिकल मतलब दिस इज द अटैचमेंट पॉइंट जो कि सपोर्ट या कंडक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये ओवरी वॉल का कनेक्शन एंड ओव्यूल का वॉल का कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। सो फ्यूनिकल। नेक्स्ट इज अ इंटीग्यूमेंट। These are the very important parts, integument, outer and inner, जो कि क्या है, it provides a protection, ये provide करता है protection, लेकिन किसको कर रहा है, nucellus and embryo sac को। So आपको याद रखना है ये protection provide करता है। ये वाला nucellus हमने पढ़ा वो nourishment कर रहा था, but protection के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। So integuments are meant for the protection, ठीक है। So किसको, nucellus and embryo sac को। But most of the time integuments still with the seeds after fertilization. So वो क्या करते हैं, after fertilization they can convert it into a seed coat. Basically काम उनका यही है protection का throughout the fertilization। ये ओव्यूल के साथ भी रहते हैं, fertilization के बाद seed को भी protection provide करेंगे in the form of seed coat. So ये seed coat के inner and outer parts में conversion होता है। जैसे यहाँ inner and outer था, so इसका जो outer है वो टेस्टा होता है। तो अगर मैं यहाँ लेबल करूं तो ये आउटर जो होगा वो टेस्टा में कन्वर्ट होगा और इनर जो होगा दैट वुड बी कंसिडर और दैट वुड बी कन्वर्टेड एज ए टेगमेंट। टेस्टा एंड टेगमेंट याद रखिए। बिकॉज इट्स आउटर वन सो इट शुड बी थिक और रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो तभी तो सीड की वाइबिलिटी मेंटेन होगी।
एंड दिस इज अ इनर थिन ट्रांसपेरेंट, ये इनर होगा बिकॉज इसको प्रोटेक्शन ऑलरेडी टेस्टर प्रोवाइड कर रहा है. इट्स अ इनर पार्ट सो दैट इट शुड बी अ थिन हुआ तो भी चलेगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज टेगमेंट. दीज 2 points are very important. Now how many integuments are there in this ovule? 2, right? So that is why this is called as bitegmic. इसको ये ओव्यूल जो है इसको बाइटेगमिक ओव्यूल बोला जाता है. बाय मीन्स टू, so it has a 2 coats for the integument, that is why it is called as bitegmic. Understood this one? integument जो कि ओव्यूल में भी प्रोटेक्शन करेगा एंड सीड को भी सीड कोट के फॉर्म में प्रोटेक्शन देगा. Next is a micropyle. Here you can see the micropyle. Micropyle is the only passage. ये एक ही ऐसा एंट्री पॉइंट है जहां से पोलन ट्यूब एंट्री करेगा. बिकॉज आप देखो यहाँ कोई भी दूसरा ओपनिंग नहीं है. ओव्यूल हैज ओनली 1 ओपनिंग इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोपाइल. सो माइक्रोपाइल के फॉर्म में एक ही ओपनिंग आपको यहाँ दिख रही है. एंड दिस इज द ओपनिंग विच फॉर्म्स द पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब का एंट्री फैसिलिटेट करेगा और पोलन ट्यूब में से फीमेल गैमेटोफाइट आएगा. फीमेल गैमेटोफाइट के साथ यूनाइट होकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा इन द ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. ठीक है, बहुत इजी है. ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट अलाउज द एंट्री ऑफ वाटर एंड रेडिकल कम्स आउट थ्रू इट. जब सीड फॉर्म हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन माइक्रोफाइल्स फिर भी सीड के साथ प्रेजेंट होता है. एंड वो एक मैंने क्या बोला आपको, यहाँ बस एक ही ओपनिंग है. तो इवन इफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड भी बन जाता है तो भी एक ही ओपनिंग रहेगा. एंड वो फूड वाटर जो है सीड के जर्मिनेशन के लिए वही अंदर लेके जाएगा और उधर से ही रेडिकल बाहर आएंगे. रेडिकल मतलब रूट फॉर्मेशन होगा आगे चल के. नाउ हियर वी डिस्कस द एम्ब्रियो सैक. We already have seen the detailed structure of embryo sac. It has 3 antipodals, 2 secondary nucleus, 1 egg cell and 2 synergids with the filiform apparatus. Now embryo sac means it consists of 7 cells और 8 nucleate. मैं already आपको समझा चुकी हूँ. Generally embryo sac in angiospermic plant is a monosporic endosporic, right? So आपको याद रखना है ये 2 words यहाँ, monosporic and endosporic. ठीक है, now we'll find out their meaning. Endosporic मतलब क्या? Female gametophyte is formed within the functional megaspore. We'll see that when we'll discuss the female gametophyte का development. लेकिन याद रखिए endo मतलब inside development होता है. तो female gametophyte form within the functional megaspore. Functional megaspore के अंदर उसका formation होता है. And monocarpic means only 1 megaspore takes part in the formation of embryo sac. Only 1 megaspore, right? So ये जो डेवलपमेंट है फीमेल गैमेटोफाइट का तब हम पढ़ेंगे तब आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी. बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक एनाट्रोपस ओव्यूल, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए. दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल जो इन्वर्टेड है जिसमें चालाजा एंड माइक्रोपाइल एक ही लाइन में रहेंगे. And these are this one. They have a 7 cell, 8 nucleated endosporic, monosporic structure. ठीक है. Integuments are bitegmic in nature because it has a 2 inner and outer part. ठीक है. This is the structure of anatropous ovule. हमने अभी पूरा structure anatropous का in detail पढ़ा. Now we'll discuss the types of ovule in next session. Okay. So if any doubt, you can let me know. See you in next session. Thank you.